इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and every participants who have joined us today for our webinar series. I, Archana Sharma, along with the entire team of Franchise India, welcomes each one of you to our business opportunity over chai. This is a digital representation of the business opportunity which we have got for you. Franchise India is Asia's largest integrated franchise solution company since 1999. And our aim and objective is to provide maximum business opportunities, franchise solutions to all the investors. And we truly claim that no one sells more business than us, because we have helped more than 78,000 investors in getting the business solutions from our side. And we have helped more than 5,000 international and national brands to expand their business with our 80+ offices. We do not endorse any particular brand. The business opportunity which we have got for each one of you is Fashtel. That's the brand from Gujarat. And today the team has joined, Jignesh has joined to this particular digital representation, where he'll be talking about his business ideas and how you can operate this particular business. So thank you so much once again for joining in. Now we invite Mr. Jignesh to talk about his business opportunity. Just allow us 1 minute. Hi, Jignesh. Good afternoon. Thank you so much for logging in. Now, can we request you to start the presentation so that we can have an introduction as well as the correct and the complete understanding about your brand? Jignesh भाई, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, should we start the presentation? Sonia, just allow me 1 minute. I think he's facing. Sure. जिग्नेश भाई, हाँ जी, हाय, गुड आफ्टरनून। जिग्नेश भाई, आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
हेलो। Hi, Jignesh bhai, thank you so much for joining the call. Can we start the presentation? I'll just share my screen for you. मैडम, आप टेक्निक खराबी के कारण आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, ना मुझे कुछ दिख रहा है उसमें, खाली आवाज शेयर हो रही है। हेलो। We can put the presentation अगर आपको Yes, presentation, हाँ, we can put the presentation एक बार आप please Sure, select ma'am, so you can see the screen. Jignesh bhai, अब देखिए आपको presentation दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है जी। Okay. So Jignesh bhai, स्वागत है आपका इस वेबिनार के लिए। Shall we start with the presentation? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फास्ट डील की ओर से, अहमदाबाद की ओर से बोल रहा हूँ। हमारा एक चीज है जो सुपरमार्केट की तरह चलने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये बिजनेस ग्रो करेगा। सुपरमार्केट जैसे कुछ लगेगा शॉप की जगह पर, वहाँ से सुपरमार्केट की तरह कस्टमर आएंगे, आपसे परचेस करेंगे। और दूसरा ऑनलाइन बिजनेस जैसे रिलायंस है, बिग बास्केट है या उड़ान है, उस तरह से B2B या B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे B2B यानी कि अगर कोई भी कस्टमर है, कुछ चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको बेचनी है, तो भी वो हमारे ऐप से जुड़ेगा। और कोई भी कस्टमर को घर के लिए कुछ भी चाहिए, होम प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी पॉसिबल रहेगा कि फ्रेंचाइजी उसको डिलीवरी करेगा। अगर कस्टमर को लेना है कि भाई मैं कुछ पर्सनली जाके देख के कुछ परचेस करनी है सुपरमार्केट की तरह, जैसे रिलायंस फ्रेश है, डीमार्ट है, और कई सारी कंपनियां है वो जिस तरह से बिजनेस करती है, इस तरह से हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। ये कॉन्सेप्ट B2C, B2B, B2 यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है। मैडम और कुछ बताइए आप। हेलो जिग्नेश भाई, आप हेलो। अगर प्रेजेंटेशन रन कर सके, थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बता सके, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ब्रांड है, हमने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी और हमारी ऑफरिंग क्या है हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए। हाँ, हमारी ओपनिंग तो जनवरी से हुई थी। हाँ, फिलहाल अभी एक जगह पे हम रन कर रहे हैं, देगाम में। तो देगाम में करीबन कस्टमर को हम डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, लेकिन B2B स्टार्ट नहीं किया अभी तक। B2B हम स्टार्ट करने वाले 15-20 दिन में गांधीनगर से। काफी लोगों ने सराहना है कि ये हमें परचेस इस कोरोना काल में लेने जाना पड़ रहा है कस्टमर की ओर से। कोई भी सुपरमार्केट में तो क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम घर तक यानी कि होम तक, उनके कस्टमर के होम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। B2B तो अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने कि बिजनेस टू बिजनेस, अगर कोई मैन्युफैक्चर है, उसको अगर अपना गुड्स या उसका उत्पादन बेचना है, वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। हमने खाली इतना स्टार्ट किया है देगाम में, गुजरात में, कि अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो मैं अपने ऐप की ओर तरफ से वहाँ से ऑर्डर पंच करूँगा, ऑर्डर आएगा मेन कंप्यूटर में, और वहाँ से वो चीज़ यानी कि कोई भी SKU हम कस्टमर के घर तक डिलीवरी करेंगे। तो जिग्नेश जी, मैं 5 महीने का हमारा। हाँ जिग्नेश जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ। बोलिए। जैसे आपने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन भी किया कि ये मॉडल कैसे काम करेगा। अपना इन्वेस्टर फ्रेंड्स के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा डिटेल में। सो फास्ट डेल एक फास्ट होम डिलीवरी सर्विस है, जिसमें कंपनी प्लान ये कर रहे हैं कि हम जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनेंगे, वो एक
क्लाउड स्टोर, छोटू से क्लाउड स्टोर एक सेटअप करेंगे, जिसमें कंपनी आपको कुछ इन्वेंट्री देती है कुछ प्रोडक्ट्स की, एंड देन फ्रेंचाइजी अपने आप भी लोकल मार्केट से कुछ वेंडर्स के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकता है अपने स्टोर में, राइट। एंड कंपनी जो फ्रेंचाइजी को सपोर्ट दे रही है वो सपोर्ट रहेगी ऑर्डर जनरेशन में, और सेकंड सपोर्ट रहेगी प्रोडक्ट डिलीवरी में, जी। सो जैसे मैंने बताया कि एक फ्रेंचाइजी का क्लाउड स्टोर होगा। क्लाउड स्टोर का मतलब ये है कि आपको कोई फ्रंट बहुत ही महंगी लोकेशन पर स्टोर नहीं बनाना है। ये क्लाउड स्टोर का मतलब ये है कि आप एक सेकंड थर्ड फ्लोर पर एक स्टोर बना लें, गोदाम टाइप का बना लें, जहाँ पे आपकी पूरी इन्वेंट्री स्टॉक रहेगी, राइट। कंपनी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रही है ऑर्डर जनरेशन में, पॉइंट 1। सेकंड, कंपनी सपोर्ट करती है पूरा डिलीवरी करने में भी। सो फ्रेंचाइजी को कोई डिलीवरी टीम अपने रखना नहीं है। सेकंड, फ्रेंचाइजी लोकल मार्केट से भी दूसरे वेंडर्स के साथ, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़कर उनका जो मटेरियल है वो भी स्टॉक कर सकते हैं अपने स्टोर में, कर सकती है। हाँ जी, जी। सो इसमें जो दो तरह से हमारे रेवेन्यूज बनते हैं फ्रेंचाइजी के, वन, उनको जो मार्जिन्स मिलेंगे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्टॉक पर, जो मार्जिन्स मिलेंगे वो डायरेक्टली सारे उनके हैं। कंपनी अपने मटेरियल पर कुछ मार्जिन पास ऑन करेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे फाइनेंशियल साइड पर। एंड थर्ड, जो कंपनी डिलीवरी में आपको सपोर्ट दे रही है, उसमें भी जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसमें हम एक शेयरिंग करेंगे फ्रेंचाइजी के साथ। सो रेवेन्यू शेयरिंग की बात हम करेंगे जब हम एक फाइनेंशियल साइड पर आते हैं। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा इस मॉडल पर क्यों आ रही है कंपनी। जैसे दिग्नेश जी ने शुरू में बात की, इंडिया आज के डेट में अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं। और आपने अपने नेबरहुड में, अपने शहर में देखा होगा कि FMCG एंड फूड एंड ग्रोसरी स्टोर्स अब ये ऑर्गेनाइज्ड स्टोर फॉर्मेट में आ गए हैं, राइट। उससे एक एडवांटेज ये भी हो रहा है। हाँ जी, आता हूँ जी। तो आप ये भी देखेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट की तरफ जा रही है। जो यंग कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसी शॉप से शॉपिंग करना जहाँ पर थोड़ा कन्वीनियंस हो, हाइजीनिक हो, फूड एंड ग्रोसरी स्टोर खुद जाकर पिकअप कर पाए, प्रोडक्ट की डेट चेक कर पाए, एंड देन वो कर पाए। साथ ही साथ हम एक और ट्रेंड ये भी देख रहे हैं जहाँ पर आज कस्टमर होम डिलीवरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। स्पेशली जैसे जिग्नेश जी ने बात भी करी, पैंडेमिक के दौरान कस्टमर आज मार्केट में जाना थोड़ा सा घबराते हैं, राइट। सो प्रेफर कर रहे हैं कि हिचकिचाते हैं कोरोना का, हिचकिचाते हैं, करेक्ट। तो प्रेफर करते हैं कि मटेरियल को होम डिलीवर हो जाए, और इसीलिए कंपनी अब इस मॉडल में आई है जहाँ पर हम एक, जैसे मैंने बताया कि क्लाउड स्टोर हम बनाएंगे, सारा मटेरियल वहाँ पर स्टॉक रहता है एंड ऑर्डर्स के हिसाब से और होम डिलीवरी सर्विस है ये, राइट। एंड एज अ फ्रेंचाइजी आपको अपनी डिलीवरी टीम नहीं रखनी है, पूरी डिलीवरी कंपनी मैनेज करेगी ऑन योर बिहाफ। आपको एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेजर रोल रहेगा इसमें। कंपनी से कुछ स्टॉक मिलता है, दूसरा आपके मार्केट में जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह से कस्टमर्स हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि वाइबल होंगे, सेल कर पाएंगे, वो आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का टाइप करें और वो प्रोडक्ट अपने स्टोर में लेके आए, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें रहेगा कि आपको अपने लोकल एरिया में लोकल स्टोर मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर जनरेट करने हैं। कंपनी तो आपको सपोर्ट कर ही रही है उसमें, बट एज अ फ्रेंचाइजी आपको भी एक मिनट जी प्लीज बताएं। आपको रोकना चाहूंगा। मार्केटिंग के लिए हमारे एक यू पेपर विंग चल रही है, उसके हिसाब से जिस रूट में या जिस सिटी में अपना फ्रेंचाइजी होगा उसकी एड हम फ्री करेंगे। हमारे ई न्यूज़पेपर चल रहा है पूरे गुजरात में, उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। एक ऐप के थ्रू लोगों के या पब्लिक के मोबाइल में जाएगा, वो ऐप खोलेगा, न्यूज़ के साथ साथ जहाँ भी अपना फ्रेंचाइजी होगा उसकी एड अपने आप अंदर दिखेगी। तो क्या मार्केटिंग हर संभव
पूरा प्रयास होगा कि जो फ्रेंचाइजी है उसकी मार्केटिंग हो सके। उनके हिसाब से तो वो करेंगे मार्केटिंग, लेकिन हम अपने हिसाब से वो फ्रेंचाइजी को ग्रो करने के लिए हम जी। पूरी ई कॉमर्स टीम पूरी लग जाएगी उनके पीछे। ये बहुत तो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका जो जिग्नेश जी ने मार्केटिंग रखा। का वैल्यू है बहुत बढ़ जाएगा। जी हाँ जी, जी। कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जिग्नेश जी ने रखा है मार्केटिंग सपोर्ट को लेकर। सो पूरी तरह से एक फ्रेंचाइजी को ये मार्केटिंग सपोर्ट देंगे ऑर्डर जनरेशन के लिए। अब हम इस सेक्शन में बात करते हैं कि फास्टेल आज की डेट में कैसे ये मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने अभी बताया कि एक हाइब्रिड ग्रोसरी एंड डेली नीड्स रिटेल एग्रीगेटर मॉडल है, जहां पर फास्टेल एक अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, प्लस अपनी इन्वेंट्री लेकर आएंगे। एक मार्केटिंग मोबाइल ऐप है, वेब पोर्टल है, जिसके जरिए वे रीचिंग आउट टू कस्टमर्स। और यहाँ पर ही आप देखेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में कि यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी का रोल है इन्वेंट्री होल्ड करने का एंड ऑर्डर्स के हिसाब से वो डिलीवरी करने का। डिलीवरी के लिए कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, आपको अपनी डिलीवरी टीम नहीं लानी है, राइट। 20 रुपीज पर ऑर्डर डिलीवरी ये कंपनी चार्ज करेगी फ्रॉम एंड 5% ऑन द ऑर्डर वैल्यू। सो जिग्नेश जी, मैं इस पर आपके थोड़े से कमेंट्स चाहूंगा कि किस तरह से ये रेवेन्यू मॉडल वर्कआउट होगा। रेवेन्यू मॉडल इस तरह से होगा कि अगर पर ऑर्डर, चाहे कितनी भी अमाउंट का ऑर्डर हो, 20 रुपया हम पर ऑर्डर चार्जेस करेंगे। उसके 3 या 5 किलोमीटर के आसपास का रूट है, वहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल होगी, और 20 रुपया पर ऑर्डर चार्जेस, और मार्जिन 5% हम लेंगे। वो 5% में कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो वैल्यू के हिसाब से रहेगा। जी, और ये 20 रुपीज जो आप पर ऑर्डर चार्ज कर रहे हैं, ये रिटेलर को चार्ज करेंगे, राइट? ये फ्रेंचाइजी को चार्ज नहीं हो रहा है। रिटेलर फ्रेंचाइजी को कुछ भी नहीं, फ्रेंचाइजी को खाली इतना है कि उनका बिल बना के डिलीवरी बॉय को दे रहे हैं, और गुड्स का पैकिंग करने के बाद डिलीवरी बॉय को दे रहे हैं, बस। ये जवाबदारी फ्रेंचाइजी की रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजी की रहेगी। और उसका एक ऐप भी हमने तैयार कर दिया है डिलीवरी के लिए, कि डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी कहाँ पर है, डिलीवरी किस पोजीशन है, वो भी सबको, हमको भी दिखाई देगा, फ्रेंचाइजी को भी दिखाएगा, डिलीवरी बॉय को भी दिखाई देगा। वो जब कंप्लीट हो जाएगी डिलीवरी, तब तीनों में सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा। तो जिग्नेश जी, इसमें जो आपने इसके लिए अलग से, हाँ जैसे आपने बताया 20 रुपीज बोलिए। पर ऑर्डर आप चार्ज करेंगे मटेरियल सप्लायर को, एंड 5% ऑर्डर वैल्यू का चार्ज करेंगे अगेन मटेरियल सप्लायर को, राइट। और जो मार्जिन डायरेक्टली फ्रेंचाइजी को मिल रहा है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से, वो उनकी अर्निंग है, राइट। बट ये जो 20 रुपीज एंड 5%, ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसमें भी फ्रेंचाइजी को कुछ शेयरिंग हम करें। 5% जो उनका मुनाफा है, टोटल वैल्यू जो उनका नेट प्रॉफिट है, 500 रुपया की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 रुपये का कोई एक्सक्यूज, ठीक है, 8% का जो भी वैल्यू होता है उसका 5%। अच्छा, जैसे 500 रुपए में आपने 8% पकड़ा तो 500 40 की रुपया। वैल्यू है, ठीक है, हाँ जी, मार्जिन है, यहाँ लगी 40 रुपया हुआ, उसमें से 5% हम लेंगे उसे, मतलब 25 रुपीज, 25 रुपया कंपनी को आएगा, 15 रुपया फ्रेंचाइजी को जाता है। जी। अच्छा, ठीक है। एंड देन दिस 20 रुपीज पर ऑर्डर डिलीवरी, ये पूरा कंपनी को जाता है, बिकॉज पूरा डिलीवरी फंक्शन जो है वो कंपनी हैंडल करती है, करेक्ट। क्योंकि जो बंदे रखेंगे, डिलीवरी बॉय रखेंगे, उसका सारा एक्सपेंस कंपनी उठाती है। जी, करेक्ट। वो फ्रेंचाइजी के ऊपर नहीं है, तो इसके लिए हम 20 रुपया ले रहे हैं।
सो एज अ फ्रेंचाइजी आपके पास जो मार्जिन्स आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं ऑन द प्रोडक्ट, प्लस जो इन्वेंटरी फास्टेल भी आपको देगा, उसमें जो मार्जिन्स दे रहे हैं, टोटल मार्जिन में से 5% मार्जिन कंपनी चार्ज करेगी, बाकी मार्जिन आपके पास रहेंगे। टिपिकली जो ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन देखे गए हैं वो 11 से 12%, 13% तक भी कुछ सेगमेंट्स में होता है। तो 5% कंपनी चार्ज करेगी, बाकी 7 to 8% मार्जिन ऑन सेल्स वो आपका रेवेन्यू बन जाता है, राइट। अगेन आई एम सेइंग डिलीवरी का कोई भी फंक्शन आपको मैनेज नहीं करना है। जी जी बताइए दिनेश। अगर उनकी शॉप पे, यानी कि उन्होंने सुपर मार्केट बनाया कि वहां आके कोई भी कस्टमर परचेज करता है कुछ भी, उनकी जो इनकम है उसमें हमें कुछ लेना नहीं है, वो सारा प्रॉफिट है वो फ्रेंचाइजी का है। जी जी समझे मैंने क्या बोला? समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूं? आई थिंक दिनेश ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री मार्क्स, ओके। सो जैसे कि अभी इस डिस्कशन में आप समझ भी सकते हैं कि फ्रेंचाइजी जो है, इस केस में हम फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल पर ही जाएंगे, जिसमें फ्रेंचाइजी के दो रोल हैं। एक उनको अपना एक स्टोर बनाना है, क्लाउड स्टोर, हिडन स्टोर, जरूरी नहीं कि बहुत हाई एंड लोकेशन पे हो। दूसरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, दूसरे वेंडर्स का टाइप करना है, कंपनी उसमें हेल्प कर सकती है। एंड सेकंड, कुछ मटेरियल आपको कंपनी से मिलेगा, तो वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उसको एनालाइज करते हुए, समझते हुए आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें। तो उसके लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी कि ये इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स कैसे हैंडल करने हैं, तो वो पूरी ट्रेनिंग कंपनी आपको देती है, राइट। कमिंग टू फ्रेंचाइजी प्रपोजल, सो थर्ड सेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया पहले, ये मॉडल है ओवरऑल, इसमें अब फ्रेंचाइजी का रोल हमने डिस्कस कर लिया, राइट। सो कमिंग टू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसमें एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट मॉडल है ये। अब 1500 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ये क्लाउड स्टोर है, तो आप सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर भी ये वेयरहाउस कर सकते हैं, इवन लोअर ग्राउंड फ्लोर्स और बेसमेंट्स जहाँ पर रेंटल बहुत कम हो जाते हैं, उस लोकेशन पर ये वेयरहाउस लिया जा सकता है। इंटीरियर फिट आउट कॉस्ट डिपेंडिंग की साइट कितनी रेडी है टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वेयरहाउस, सो वो एक 10 लाख रुपीस का एस्टिमेट है, बट आई थिंक ये कम हो सकता है डिपेंडिंग कि कितना हमें काम करना होगा उस साइट पर, राइट। सिमिलरली इक्विपमेंट वाइज 12 लाख रुपीस इक्विपमेंट, अगेन ये भी डिपेंड करेंगे कि वो वेयरहाउस कितना रेडी है टू बी यूज्ड एज अ वेयरहाउस फॉर अ ग्रोसरी स्टोर, राइट। सो ये दोनों इन्वेस्टमेंट 22 लाख रुपीस, ये आधी भी हो सकती है, बिटवीन 12 to 20 लाख रुपीस ये वेरी करेगा। स्टॉक 15 लाख रुपीस का, प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1.5 लाख रुपीस एंड फ्रेंचाइज फीस 2.5। सो ओवरऑल एक एस्टिमेटेड फिगर है 42 लाख की, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 30 से 40 लाख रुपए का मॉडल समझें, 30 to 40 लाख रुपीस, नॉट 40 लाख रुपीस, राइट। डिपेंडिंग एक एस्टिमेटेड नंबर हमने एस्टिमेट किया था कि 3 करोड़ का टर्नओवर साल का एक स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज प्लान ये है कि 1000 फैमिलीज और 5000 पॉपुलेशन के ऊपर हम एक फ्रेंचाइजी देने का प्लान किया है। सो 1 स्टोर पर 5000 पीपल इज व्हाट वी वांट टू डू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ अबाउट 800 to 900 रुपीस। सो इस ऑर्डर से, एंड एक एस्टिमेटेड नंबर ये भी है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर फैमिली पर मंथ, आपको ऑन एन एवरेज 3 ऑर्डर्स पर मंथ एक फैमिली से ऑन एन एवरेज ऑफ 800-900 रुपीस का एक ऑर्डर आना चाहिए। सो गिवन दिस नंबर आपका 3 करोड़ का टर्नओवर जो है पॉसिबल है जनरेट करना एनुअल बेसिस पर, राइट।
Orders per day, 30 orders a day, average value of 500, 20 रुपीज पर ऑर्डर कंपनी जनरेट करती है, तो वो एनुअली 2 लाख रुपीज कंपनी को जाएगा। मार्जिन जो 5% हमने बात की, वो 5% मार्जिन हम स्प्लिट करेंगे बिटवीन बोथ द पार्टीज। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मॉडल एक एक्साइटिंग मॉडल है। इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीज है, आपका कुछ इसमें रोल है नहीं अपार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओवरऑल 21 to 24 मंथ्स में एक ROI निकल सकती है। बहुत ही रियलिस्टिक नंबर्स हैं, एंड आई एम श्योर कुछ फ्रेंचाइजीज इससे बेहतर नंबर्स कर पाएंगे। So 2 broad numbers to understand. One is we're looking at 1 franchisee store per 5,000 population. Again, depending on the location and the type of population, ये 5,000 to 10,000 भी कर सकते हैं। Income level पे depend करेगा, demographics पे depend करेगा। So on an average, 1,000 to 2,000 families is what we're looking at. Average order value of 800 and into 3 orders a month from the family. So आइडिया ये है कि 2,500 से 3,000 रुपए की बिलिंग एक फैमिली की एक महीने में होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपके 3 करोड़ का टर्नओवर साल का बनता है, राइट। एंड गिवन द नंबर्स एंड मार्जिन्स, ये 30 to 40 लाख रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका 21 मंथ्स में रिकवर हो जाना चाहिए। ये डिटेल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड। Then ideal partner profiles, we're absolutely looking at, जैसे इसमें बताया मैंने कि इसमें आपका लोकेशन इम्पोर्टेंट है, बट क्लाउड स्टोर है तो लोकेशन हमें बहुत हाई एंड लोकेशन नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक रेजिडेंशियल एरिया में, एक हाई रेजिडेंशियल एरिया में अवेलेबल हो, बट इट कैन बी अ बेसमेंट लोकेशन, इट कैन बी 2nd, 3rd फ्लोर लोकेशन। हाई रेंटल लोकेशन पर नहीं जाना है। हमें अपने कॉस्टिंग्स बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक डेंस रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ये लोकेशन लें, राइट। की सपोर्ट फंक्शंस, प्रिपरेशन फॉर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो कौन सी लोकेशन वर्कआउट करेगी तो कंपनी उसमें आपको हेल्प करती है। साइट सिलेक्शन, डिजाइन एंड आर्किटेक्ट, आपको पूरा वेयरहाउस डेवलप करने में, सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, कोऑर्डिनेशन, टीम स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स पर कंपनी काम करेगी आपके साथ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, जो हमारा पोर्टल है, वेब पोर्टल एंड ऐप बोथ, उन पर कंपनी कंटिन्यूसली काम करती रहती है टू डेवलप एंड मेक इट मोर इजियर, यूजर फ्रेंडली, सो उस पर हम काम करेंगे। Now coming to why this is an important and very interesting opportunity. जैसे हमने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बात किया, आज की डेट में अगर आप देखें तो ग्रोसरी रिटेल एंड फूड रिटेल, FMCG मार्केट, ये तीनों सेगमेंट बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स की तरफ से अगर सोचें तो कस्टमर आज होम डिलीवरी को प्रेफर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई companies also come up with a home delivery model, right? Hybrid approach to traditional business, दोनों तरह से इसमें काम होंगे। Sustainable competitive advantage है, कंपनी की एक अच्छी प्रेजेंस है अहमदाबाद में, गुजरात, ओवरऑल वेस्ट इंडिया, फोकस्ड अप्रोच, प्रोडक्ट मिक्स एंड असॉर्टमेंट प्लानिंग में कंपनी आपको हेल्प करती है, एंड इट्स अ वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग। एज अ फ्रेंचाइजी बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं, आपको 2 चीजें मैनेज करनी है। वन इज इन्वेंट्री प्लानिंग, जो इन्वेंट्री आपको कंपनी से मिलेगी वो, और दूसरा मार्केट में जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, FMCG के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कॉलगेट है, HUL है, इन कंपनीज के साथ आपको मिलकर इनके डिस्ट्रीब्यूटर से आपको प्रोडक्ट सोर्स करके अपने स्टॉक मैनेज करना है, राइट। कंप्लीटली होम डिलीवरी फंक्शन कंपनी हैंडल कर रही है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, स्पेशली अगर आप लोकेशन भी ऐसा देखें जो लो रेंटल लोकेशन है बट क्लोज टू डेंस रेजिडेंशियल एरिया में है, लेकिन रेंटल कम है,
मैन पावर कॉस्ट बहुत कम है इसमें, सो इन दैट सेंस आपका रिस्क एक्सपोजर बड़ा कम है इस केस में, बट रेवेन्यू पोटेंशियल कैन बी ट्रेमेंडस। एक फैमिली ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपए की बिलिंग महीने की करती है अक्रॉस FMCG, फूड एंड ग्रोसरी, और वो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी असॉर्टमेंट प्लानिंग, आपका स्टॉक इस तरह से हो कि वो पूरी 3,000 की बिलिंग आपके ही एंड पर हो, राइट? And given the margins and everything, this is a very interesting opportunity for you guys. जी, थैंक यू सो मच अंशुल, थैंक यू सो मच जिग्नेश जी। हम कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। फ्रेंड, जो भी आपके क्वेश्चन है इस मॉडल को लेके आप Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड हम आपके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस पिक करेंगे। जिग्नेश जी, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें ओवरऑल, एंड जस्ट टू आल्सो मे बी गिव लिटिल क्लैरिटी टू आवर फ्रेंड्स, ये हमारा जो मॉडल है वो एक ग्रोसरी स्टोर का मॉडल है, एंड डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपका कोई फिजिकल रिटेल इंटरफेस विद क्लाइंट नहीं रिक्वायर्ड होता, नाइदर यू नीड अ space where a direct customer or a client comes in, but they have to be in the right neighborhoods. वो बहुत important है, premium location नहीं चाहिए, but neighborhood इनके लिए बहुत important है. That's the reason they called either dark or I would say cloud stores. So overall investment is about 40 is what we've talked about, with an area of 1,500 square feet, जिसमें तकरीबन जो आपका stock का investment है वो 15 lakhs का इसमें रहता है, and there's a franchise fees of 2.5 lakhs, and बाकी जो investment है आपका equipment पे है, basic interiors पे है, depending on the condition of the location that you have taken, this investment might get reduced. सो जिग्नेश जी, शुरू में अगर हम बात करें, ये पूरा जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने इसमें जो बात की है इक्विपमेंट की बात की, विच इज अराउंड 12.5 lakhs का हमारा इक्विपमेंट है, and I will also come on the other parameters. So initially I'd like to pick up on the investment itself. जो हमारा breakup रहेगा investment का, broadly हमने define किया है हमारा क्या investment रहता है, but just for little clarity, हमारा जो interiors पे investment है उसमें हम क्या चीजें cover करेंगे, और जो हमारा equipment के ऊपर investment है उसमें हमारी क्या चीजें cover होती हैं। आप म्यूट पे हैं। ओके। हाँ जी। इक्विपमेंट में जो हमारी कवरेज होती है उसमें हमारा जो ऐप है वो तो तीनों मिल जाएंगे आपको, B2C, B2B और डिलीवरी। बाकी रहा प्रिंटर, कंप्यूटर, 3 या 4 कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर दिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे ख्याल से इंटरनेट ब्रॉडबैंड वो चाहिएगा उनको, बस और कुछ तो नहीं रहेगा। स्टॉक की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ चाहिएगा हमको कि भाई स्टॉक मेंटेन रहे, फूड आता इन और आउट दोनों कंप्यूटर में आना चाहिए उनके। अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है उनके लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग कंप्यूटर चाहिएगा। एग्जाम्पल दो, उनका कोई सुपर स्टोर है, कस्टमर आया, चीज को लेके गया, वो माइनस होनी चाहिए उनमें। अगर नेट से ऑर्डर आया तो वो चीज भी उनके स्टॉक से माइनस होनी चाहिए। डिफिकल्टी क्या रहती है कि स्टॉक पेंडिंग दिखा रहा है कि स्टॉक उनके पास अवेलेबल है, लेकिन फिजिकल स्टॉक नहीं होता है। उसके लिए इनको इक्विपमेंट की जरूरत रहेगी इन और आउट में। रिलायंस में मैं पहले रिलायंस में था, रिलायंस कैश एंड कैरी जो ग्रोसरी का सप्लायर है अहमदाबाद में। दिक्कत कहाँ आती थी उनमें, उनका जो इक्विपमेंट था ना उसमें स्टॉक दिखा रहा था लेकिन फिजिकल स्टॉक नहीं रहता था। उनकी अप एंड इनकी जो प्रोडक्ट्स थी ना वो बहुत डिफिकल्ट वाली थी। ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन और आउट मेंटेन रहना चाहिए। 100 पीस अगर आए हैं तो 100 पीस जाने के बाद वो वहाँ 0 हो जाना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं जो इक्विपमेंट का आपका इन्वेस्टमेंट है वो टिपिकली जो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसकी मेजरली हमारी आपका कॉस्ट हाँ। रहती है, एंड ऑल्सो रैक्स हैं जो आपको चाहिए होंगे स्टैक करने के लिए, सारा का सारा आपका जो इन्वेंट्री है, सो दैट कुड बी अबाउट इट। एंड अगर हम सिर्फ उसी की कॉस्ट ले, मेरे को लगता है ये इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाएगी। एंड नहीं, इसमें ये आपने जो कॉस्ट बताई वो थोड़ी ज्यादा है। 12 साढ़े 12 लाख आपने कॉस्ट दिखाई है, वो थोड़ी ज्यादा है। हाँ जी, 6 या 8 लाख के करीबन ये कॉस्ट पहुंच जाएगी। जो हमारा इंटीरियर होगा वो भी तकरीबन आपका 10 लाख से कम का होगा। जो जो हमारी चीज कांस्टेंट रहेगी वो फ्रेंचाइज फीस है, विच इज 2.5 लाख, और एक हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री अगर माने तो ये दोनों मिला के हमारे 17.5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है। और उसमें अगर हम ऊपर से 10 से 12 लाख और डालते हैं तो वही 35 के आसपास का आपका टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। हाँ, हो जाएगा। ठीक है निशी, अगर इसमें हम स्टॉक की भी बात करें, हमने 15 लाख का स्टॉक लिया है, तो ये स्टॉक किस वैल्यू पे फ्रेंचाइजी को दिया जाता है? 15 लाख का स्टॉक अगर मान के चलो फ्रेंचाइजी रखती है तो बहुत है अभी, क्योंकि वो अप डाउन होता रहेगा। 15 लाख में से 3 लाख का सेल हुआ, 5 लाख का फिर से माल आ जाएगा। हाँ जी, और हम देंगे ऐसा नहीं है। अगर हमने जो रेट दिया उनको और वहाँ उनके पास से कोई और रीजनेबल रेट में मिल रहा है, हमारे से थोड़ा कम में, तो वो वहाँ से ले सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हमने समझ लो कि भाई गुलाब कॉटन 15 किलो का रेट दिया 1700 रुपया, और फ्रेंचाइजी को उनके कहीं आसपास में मिल रहा है 1650 में, तो वो वहाँ से ले सकता है। बाकी सब फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि वो हमारे से ही लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तो रिलायंस ने अभी अभी उनका लॉन्च किया है, लेकिन जो भी गुड्स फ्रेंचाइजी को लेना है वो रिलायंस से ही लेना है, चाहे सस्ता मिले या महंगा मिले। हमने ऐसा नहीं रखा है। हमने रखा है कि अगर फ्रेंचाइजी को हमारे रेट से कहीं और सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से पहले प्रेफर उनको देंगे कि भी उनसे ले। हम ये चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा फ्रेंचाइजी की जेब में जाए, वो ग्रो करे। ग्रो नहीं करेंगे तो फ्रेंचाइजी चलेगी नहीं। राइट जिग्नेश भाई, थोड़ा सा मैं और इसमें समझ 15 लाख का हाँ जी, जो 15 लाख का हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये एमआरपी वैल्यू आप बात कर रहे हैं या हमारा जो स्टॉक की वैल्यू होगी ज्यादा होगी, और इसमें क्या मार्जिन है? स्टॉक की वैल्यू ये 15 लाख आपका 15 लाख का एमआरपी स्टॉक में वैल्यू है? नहीं, उनकी जो एनटीसी आती है, यानी कि बिल बन के जो उनका आता है वो वैल्यू है। यानी तो अगर हम कि वैल्यू की 15 बात लाख करें तो का कितने का एमआरपी स्टॉक समझ रहेगा? 15 लाख इन्वेस्ट अगर करते हैं तो कितने का स्टॉक रहेगा? एक 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 वो 16.5 तक पहुंच जाएगा उनका स्टॉक, क्योंकि 8% या 12% समझ के चलो। अगर 15 लाख इन्वेस्टर ने लगाए हैं तो उनको प्लस 12% से प्लस करो, ये गुड्स उनके पास पहुंचेगा। मैक्सिमम 12% रहता ही है। अगर समझ लो कि आप एक कोलगेट पेस्ट है 100 रुपये की एमआरपी है, तो उनको 12% लेस में ही आएगी, यानी कि 89 रुपीज। वो 12% उनका मुनाफा है। अब आप स्टॉक गिन लो, 15 लाख का उसने इन्वेस्ट किया है, तो 12% लेस करके ही उनको पैसा देना है। ठीक तो है ये मान के चलो कि उन्होंने ठीक है, तो 15 इसमें लाख का 12% का मार्जिन लेके 15 लाख 15 का लाख उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा स्टॉक में, जहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू है तकरीबन 17-18 लाख के बीच में रहती। हाँ, वो एसक्यू के आसपास रहती है। पर्टिकुलरली 12% नहीं होता है, किसी में 5% होता है, किसी में 7% होता है, किसी में 12। अगर डॉन फूड की आइटम गिन लो तो उसमें से 20% 25% तक पहुंच जाती है। एवरेज अपने मान के चले तो 12% के आसपास आरओए बैठती है। ठीक है जिग्नेश भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं और भी लूंगी थोड़ा सा क्विकली। एंड आई थिंक जावेद भाई हम पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनको क्लैरिटी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मॉडल के ऊपर एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी यू नीड, आप प्लीज मैंने में डालिए, एंड विल सीक एंड टेक दैट क्लैरिटी।
unlike a retail, so what we are discussing the opportunity kirana store, you know, what we are offering to the end consumer is a किराना स्टोर जो ऑफर करता है, बट ये रिटेल जो आउटलेट है ये आपका मेन लोकेशन में, इट्स नॉट अ रिटेल आउटलेट, यू जस्ट नीड अ स्टोर व्हिच कैन ओनली डू डिलीवरीज। तो ये सिर्फ डिलीवरी करेगा स्टोर, इसलिए उसको डार्क स्टोर के नाम से कहते हैं, या क्लाउड स्टोर आप कह सकते हैं, जो सारा का सारा स्टॉक रखेगा। वहां पे रिटेल कंज्यूमर वॉक-इन्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ डिलीवरी मॉडल पे काम करता है। क्योंकि डिलीवरी मॉडल पे काम करता है तो नेबरहुड होना अच्छा बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपकी ऐसी फैमिलीज हो जिनकी मंथली कंजम्पशन या 1000, अगर हम फैमिलीज की बात करते हैं, इतना नेबरहुड होना चाहिए कम से कम 1000 फैमिलीज हम अपने रेगुलर सब्सक्राइबर्स बना सके। एंड दूसरा, डार्क स्टोर के आपके ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, इंक्लूडिंग जो आपको स्टाफ भी चाहिए होता है कम होता है, आपका रेंटल होता है कम होता है, बिकॉज प्राइम लोकेशन पे आपका नहीं है। इवन योर एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंसेस, ये भी काफी हद तक आपके रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपके मार्जिन आपके अच्छे हो जाते हैं। पर सारी की सारी जो सेल्स है वो आपकी डिलीवरी सेंट्रिक रहती है, यहाँ पे सारी प्रमोशन मार्केटिंग प्रमोट करेंगी कंपनी, उसमें हेल्प करेगी आपको सब्सक्राइबर बेस जनरेट करने में, फुलफिलमेंट भी इसमें कंपनी करेगी, सारी डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, इवन ऑर्डर जनरेशन, लोकल मार्केटिंग भी कंपनी आपको हेल्प करती है। सो दूसरी चीज जिग्नेश भाई मैं इसमें पूछना चाहूंगी, हमने इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, जैसे हमने जो ब्रेकअप दिखाया है हमने थोड़ा हायर साइड पे दिखाया है, आप कह रहे हैं तकरीबन इसमें 10-1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जो भी हमारा स्टॉक रहेगा 15 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में है, जो तकरीबन आपका 17-18 लाख का स्टॉक आपके आउटलेट पे रहता है, अगर हम 12% मार्जिन इसमें लेके चलते हैं। दूसरा जो मैं क्वेश्चन लेना चाहती हूँ मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, जो हमारे ऑनगोइंग खर्चे होते हैं, अगर एक स्टोर की बात की जाए तो ये 1500 स्क्वायर फीट का हमारा स्टोर है, इसके ऑनगोइंग खर्चे ऑन एन एवरेज क्या रहेंगे, क्या हमें मैन पावर इसके अंदर चाहिए होगी, क्या रेंटल आप एडवाइस करते हैं इस स्टोर पे रहना चाहिए? हाँ जी। रेंटल, अगर रेंटल पे फ्रेंचाइजी तो उनका 300 स्क्वायर फीट पे गिन लो, जो लोकेशन के हिसाब से रेंट चल रहा होगा। अगर हैवी लोकेशन है, रेसिडेंशियल 100 फुट के आसपास या 500 स्क्वायर फुट के आसपास रेसिडेंशियल ज़्यादा है तो उनका रेट बहुत ज़्यादा रहेगा। वो लोकेशन के आधार पर ही उनका रेट फिक्स होगा। और इसमें और कौन से ऑपरेटिंग खर्चे रहेंगे एक आउटलेट में? एक तो रेंटल आएगा, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, स्टाफ लेना पड़ेगा उनको, फिर पैकिंग मटेरियल, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं है, फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। मेरे ख्याल से तो बस इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, फिर उनका लाइसेंस जो बन रहा है वो, बहुत ज़्यादा नहीं है उसका एक्शन, करीबन मेरे ख्याल से 70,000 या 1 लाख के आसपास हो सकता है उसका एक्सपेंस स्टोर का। अब कितना बड़ा है उस हिसाब से वो उसका एक्सपेंस चलता रहेगा। स्टाफ कितने हैं, क्योंकि स्टाफ की सैलरी वो सब फ्रेंचाइजी देनी है, हमारी जो डिलीवरी बॉय वो तो हम प्रोवाइड कर देंगे उनको, लेकिन उनकी सैलरी, स्टाफ की सैलरी फ्रेंचाइजी को देनी है, तो उनका खर्चा करीबन इसमें तकरीबन अगर हम खर्चे की बात करें, क्योंकि आपके स्टोर रेंटल बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अगर हम रेंट की बात करें, मेरे को लगता है 50 रुपए 60 रुपए स्क्वायर फीट से नीचे नीचे रहना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये प्रीमियम लोकेशंस नहीं है, ये डार्क लोकेशंस है, पर ठीक नेबरहुड में होना चाहिए, ताकि आपकी जो नेबरहुड है, डिमांड है, और जो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो आपके कंट्रोल में रहे। तीसरी चीज जिग्नेश भाई जो मैं करना चाहती हूँ डिस्कस आपसे, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं हमारे जो ऑडियंस से आ रहे हैं, जो हमारा पूरा सप्लाई चेन होगा वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जैसे आपने बोला अगर 2 लाख का स्टॉक है तो कितना टाइम लगता है वो स्टॉक एक हमें पार्टनर तक पहुंचाने में, पहली बात। दूसरा, जो हमारा स्टॉक का मिक्स होगा वो किस तरीके का मिक्स होगा, क्या क्या कैटेगरीज होंगी, और उसमें पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स क्या रहेंगे?
हाँ, स्टॉक के लिए तो एसक्यू वाइज स्टॉक रखना पड़ेगा। एक कितना एग्जांपल दे दूं, SKUs? कोलगेट पेस्ट है, कोलगेट पेस्ट है तो उसके करीबन 12 एसक्यू आते हैं। वेट के हिसाब से आते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से आते हैं। तो उसको सारा पहले स्टार्टिंग में तो सारा रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि भाई इसमें से कौन सा पुश हो रहा है ज़्यादा। जो ज़्यादा पुश होता है वो उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर वो जो पुश नहीं होता है उसको बाहर निकाल के ख़त्म करना पड़ेगा। वो हम उनको बताएंगे कि अभी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है अभी एसक्यू वाइज। जैसे कोलगेट है, पैराशूट है, पतंजलि है, वो हिसाब से वो लोकेशन पे क्या उसका पूरा सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से रूट में या कौन से पॉइंट पे डिमांड ज़्यादा है। जैसे समझ लो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में वाघ बकरी बहुत ज़्यादा चल रही है। सूरत में वाघ बकरी बिल्कुल नहीं चल रही है, वहाँ युवराज चल रही है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से सिटी में कौन से बीट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से उनको इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी। एंड इसमें जैसे आपने बोला कि इनिशियली हमें देखना होगा कि कौन कौन से SKUs रखे जाएंगे एंड ग्रेजुअली, क्योंकि क्या उसमें से निकलता है, कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा आती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी अ मंथ और 2 पता चलता है। तो ऐसे जो आइटम्स हैं स्लो मूविंग हाँ जी, हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है? वो हम वापस करते हैं, रिप्लेस करते हैं फास्ट मूविंग से? हाँ रिप्लेस हो जाता है। अगर एक्सपायरी होती है तो भी रिप्लेस हो जाता है, नॉन बाइंडिंग है तो भी रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने बोला इसमें सारी सिंगल पॉइंट सप्लाई चेन आप हैंडल करेंगे, सप्लाई करेंगे, बट अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कोई ऐसी सप्लाईज हैं जो उसको कम प्राइस पे मिल रही हैं, ही इज आल्सो ओपन टू गेट इट जी फ्रॉम एनी बिल्कुल। अदर सोर्स, हाँ, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल हाँ रहेगी बिल्कुल ले सारी सकते सारी हो। सप्लाई चेन हैंडल करने की। हाँ जी। एंड इसमें हमारे SQs ओवरऑल कितने हो जाते हैं? अगर हम SQ की बात करें तो क्या नंबर SQs हमारे रहते हैं? एसक्यू नंबर तो 1300 के आसपास पहुंचेंगे। 1300 SQ हमारे। 1300। हाँ, जो बाइक है जो फास्ट मूवमेंट में चलते हैं, रोज उनकी मांगे कस्टमर की ओर से आती रहेगी। हम्म 1300 मान के चलिए। हम्म और ऐसा नहीं है कि स्टॉक उनको पूरा का पूरा लाके रख देना है। समझ लो कि डाबर आंवला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डाबर आंवला है 100 ग्राम फास्ट मूविंग है, 200 ग्राम फास्ट मूविंग है, 300 ग्राम बिल्कुल नहीं है, 500 ग्राम फास्ट मूविंग है, 10 वाली डाबर आंवला फास्ट मूविंग है। तो वो 10 रुपये वाली 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम, ये तीनों उनको रखी है। 300 को निकालो और उसमें से भी जो रूट है, बीट है, उसमें ये 4 SKU में से कौन सी फास्ट चलती है वो 1 आध 2 महीने में पता चल जाएगा कि चारों में से कौन सी फास्ट चल रही है। वही फास्ट हम अवेलेबल कराएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है। एंड जिग्नेश भाई, जैसे हम इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो पॉइंट रह गया था, मैं पूछना चाहती थी जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स रहेगा इसमें हमारे कोई पेरिशेबल आइटम भी रहते हैं या सिर्फ नॉन पेरिशेबल आइटम है, दाल आटा हाँ, नहीं चीनी? नहीं, दोनों दोनों रख सकते हैं, फूड और नॉन फूड दोनों रख सकते हैं। नॉन फूड में क्या हो रहा है, मुनाफा ज्यादा रहता है। ये 12% का मैंने जो एवरेज निकाला ना, हाँ नॉन जी। फूड में 25 से 30% पहुंच जाता है। तो अगर नॉन फूड पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा फूड के साथ साथ, तो मार्जिन में 12%, 15%, 20% पहुंच जाता है। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने जो रिलायंस में 12-15 साल निकाले, फूड में जो सेल होती है और जो एवरेज आती है कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का फूड बेचा, उसका जो प्रॉफिट हुआ, और नॉन फूड में मैंने 25,000 का सेल किया, तो इसका मार्जिन एवरेज नॉन फूड का मार्जिन एवरेज से बढ़ जाता है। ये समझ लो कि नॉन फूड का जो एवरेज है मार्जिन, वो आपके सारे एक्सपेंस खर्च निकाल देगा।
आपका जो सुपर मार्केट है या जो भी आपने बनाया है, वो उसका जो सारा एक्सपेंस है वो नॉन फूड सेल का जो मार्जिन है वो सारे खर्चे निकाल दिया, और आपका फूड का जो सेल है वो आपका बेनिफिट रहेगा, उसका मार्जिन आपकी जेब में नेट आएगा। दैट्स वेरी हेल्पफुल। एंड एक और चीज जो पूछना चाहूंगी जगदीश भाई, बिकॉज दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे जो एक फ्रेंचाइज पार्टनर करता है नॉर्मली, अगर बिजनेस की बात की जाए, वो अक्वायर करता है कस्टमर्स और फुलफिलमेंट हैंडल करता है। आप जैसे बता रहे हैं कि इसमें जो एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स है लोकल मार्केटिंग के थ्रू आप अक्वायर करेंगे, और फुलफिलमेंट भी आप करेंगे, जहाँ पे डिलीवरी जो बॉय है आप अपना एम्प्लॉय करेंगे तो उनको डिलीवरी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और वो सारी की सारी जो खर्चा है डिलीवरी का, लॉजिस्टिक्स का आप हैंडल करेंगे। तो अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो इसमें जो फ्रेंचाइज पार्टनर है उसका ऑपरेशनली क्या रोल रहता है बिजनेस के अंदर, डे टू डे ऑपरेशन? ऑपरेशनल रोल उनको पूरा स्टॉक मेंटेन रखना है। जो भी ऑर्डर ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पर दिख रहा है वो उसको पैकिंग करवाना है। जैसे एक ऑर्डर आया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसने उसका प्रिंट आउट निकाला, फिर उसके जो बंदे रखे उसको दिया पैक करने के लिए। पैकिंग करने के बाद हमारे डिलीवरी बॉय को वो चीज़ देनी है। जैसे स्विगी में होता है ना, हाँ जी, हाँ स्विगी जी। में हम ऑर्डर डालते हैं, होटल वाला उसको प्रोसेसिंग करता है, पैक करके स्विगी का जो बंदा आता है उसको हैंड ओवर कर देता है, और स्विगी का बंदा होम डिलीवर कर देता है। इसमें यही चीज़ है कि अगर ऑर्डर आया है तो फ्रेंचाइजी का रोल यही रहेगा कि उसके पास से जो मटेरियल है वो उसको उठाएगा, बॉक्स में पैक करेगा सही तरह से, और बिल बना के डिलीवरी बॉय के हाथ में देगा। डिलीवरी बॉय का काम शुरू हो जाएगा, वो लेके जल्दी से जल्दी, हमारा एक वो है कि हम 2 घंटे में जिसने भी ऑर्डर दिया है उसके घर तक पहुंच जाए। डिलीवरी बॉय लेके वहाँ तक जो उसने ऑर्डर दिया है उसके घर तक पहुंचा देगा। हाँ, पेमेंट चाहे कार्ड से आता है कि कैश आता है वो दूसरे नंबर की चीज़ है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 घंटे में जिसने भी ऑर्डर दिया है वहाँ तक माल, उनका जो ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए बस। इसके लिए हम स्टॉक अवेलेबल कराने के प्रेशर इसलिए दे रहे हैं कि फ्रेंचाइजी के पास माल अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत क्या आएगी कि जिसने ऑर्डर दिया है वो लेट पे लेट चलता जाएगा। श्योर, श्योर। रोल खाली उतना ही है उनके लिए कि अगर वो ऑफलाइन भी बिजनेस करता है, यानी कि कस्टमर आके खुद खरीदता है कस्टमर, तो भी उन हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन जो ऑर्डर आता है उसमें इनका रोल यही रहेगा कि गुड्स उठाएगा, पैकिंग करवाएगा, डीलिंग करवा के डिलीवरी बॉय के हाथ में देगा। ठीक है, बस रोल उनका उतना ही है। ठीक है दिनेश भाई। इसमें अगर हम सिटीज की बात करें, अभी हम कहाँ कहाँ एक्सपेंशन देख रहे हैं, और क्या एक एरिया हम एक अपने फ्रेंचाइज And पार्टनर को देंगे, मतलब कहाँ कहाँ भी हम खोलना चाहते हैं ये अपने डार्क स्टोर्स, और किन किन लोकेशंस, अब अगर आप सिटी बता सके, अगर हम अहमदाबाद की बात करें, जो भी सिटी आप लेना चाहते हैं, उसमें कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको लगता है अभी बहुत डिमांड भी आ रही है, और वहाँ पे अगर एक स्टोर खुल जाए डार्क स्टोर, तो एक फ्रेंचाइज पार्टनर के लिए भी एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है? अहमदाबाद के तो सारे एरिया रूट खुले पड़े हैं, 27 पिन कोड है उनके, तो सारे खुले पड़े हैं, और ये हर जगह पे चलेगा। क्योंकि जो माहौल है अभी, ये माहौल 1 साल तक खत्म नहीं होने वाला है। कोई भी हो, मैं हो क्या कोई भी हो, वो बाहर निकलने से डर रहे हैं अभी कोरोना काल की वजह से। कई लोग जाते, ऐसा नहीं जाते हैं लेने के लिए। अगर होम डिलीवरी होती है तो पहला प्रपोज होम डिलीवरी वाले को ही देंगे।
होम डिलीवरी में मेरे ख्याल से अहमदाबाद में 5 कंपनियां चल रही है अभी। हम्म, 5 कंपनियों के साथ तो रेट के लिए थोड़ा अपने को लड़ना भी पड़ेगा उससे। तभी वो जो रेट दे रहे हैं उससे सस्ता हम रेट देंगे तो ऑर्डर अपने पास जल्दी और स्पीड में आएगा। क्योंकि अगर 1200 रुपये का बिग बास्केट दे रहा है, 1215 का रिलायंस दे रहा है या 1230 का और कोई दे रहा है, तो हम उसको 1195 का भाव देंगे तो ऑर्डर अपने पास पहले पहुंचेगा। क्योंकि कोई भी सस्ता ढूंढ रहा है। आप तो मानते हो कि भाई मुझे एज ए कस्टमर से देखने जाऊँ कि तो मुझे सस्ता कौन दे रहा है 5 में से, 1200, 1210, 1230 या 1155, 1195। तो रेट के मामले में भी फ्रेंचाइजी को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि बाकी जो कंपनियां है उससे मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ना है। रिलायंस है, बिग बास्केट, अहमदाबाद की, पर्टिकुलर अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, तो हाँ उससे लड़ना पड़ेगा पहले तो कि भाई रेट कहाँ से सस्ता मिल रहा है और मैं कैसे कस्टमर को सस्ता प्रोवाइड कर पाऊँ, वो उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं रेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं एक बार क्लियर भी कर दूंगी क्योंकि व्हाइल आई हैव रिप्लाइड टू आवर इन्वेस्टर्स जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइज पार्टनर की है। और हाँ बाकी जी। जो खर्चा है डिलीवरी का वो सारी कंपनी हैंडल करती है। और जो भी ओवरऑल मार्जिन होते हैं बिजनेस में, उसमें 5% कंपनी रिटेन करती है, बाकी सारा का सारा एक फ्रेंचाइज पार्टनर रिटेन करते हैं, जिसमें आपके सारे ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, आपका रेंट, आपका मैन पावर एक्सपेंस उसमें निकल जाता है। एंड तकरीबन आपका जो ROI पीरियड जहाँ पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, वो तकरीबन आपका 1.5 to 2 years के बीच में रहेगा। एंड जिग्नेश भाई, अगर हम बात करें एक महीने में तकरीबन क्या हमारा एक एवरेज बिजनेस निकलना चाहिए, आपके खुद के एक्सपीरियंस से, आपने रिलायंस में काम किया है, आपने काफी इसमें स्टडी भी की है इस बिजनेस के लिए, तो अगर आप अपनी मार्केट समझे, अगर हम अहमदाबाद की, तो उसमें क्या आपको पोटेंशियल लगता है कि, और कितना टाइम लगेगा उस पोटेंशियल को रीच आउट करने के लिए एक फ्रेंचाइज पार्टनर को? रीच आउट करने के लिए तो समझ लीजिए 3 मंथ, 90 डेज गिन के चलिए। जितना फास्ट आपकी जो शॉप का क्या बोलते हैं उसको, लोगों के पास जाएगा आपकी शॉप का नाम, आप डिलीवरी कर रहे हो, आप वहाँ के परचेस कर रहे हो, उसका जो भी मार्केटिंग जितना फास्ट होगा उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। ऐसे तो हम है ही, हमने आपको पहले बोला था कि हमारा एक न्यूज़ चैनल चल रहा है, ई पेपर, उनके माध्यम से भी हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। तो इस हिसाब से 3 मंथ मान के ही चलिए कि आपको ग्रो करने में 3 महीने का समय लग ही जाएगा। एंड तकरीबन कितना हम लगता है कि 3 महीने में हमारा जो एवरेज एक सेल निकलना चाहिए, पहला महीना, दूसरा महीना, तो उसमें क्या आपको लगता है कितना हम रीच आउट कर सकते हैं? रीच आउट तो वो आप कौन से रूट पे या कौन से एरिया से बिलोंग करते हो उस हिसाब से चलता है। क्योंकि अपने साथ साथ किराना की दुकान भी होगी। किराना की दुकान में एक और चल रहा है, मंथ टू मंथ पे। अगर मैं परचेस किया, भाई लिख लेना, क्रेडिट में चलता है, उसको भी हमको फाइट करनी है। अपने पास कैश ऑन डिलीवरी है, COD, माल दिया पैसा लिया। अहमदाबादी में बात करूँ तो COD बहुत सारी चल रही है। अगर मेरे घर के आसपास कोई किराना शॉप है, मैं उसके पास 5 SKU का लिस्ट लेके जा रहा हूँ कि भाई ये मुझे चीज़ दे दे, वो मुझे चीज़ दे देगा और बोलूँगा खाते में लिख लेना। जब भी हाँ मेरी जी। सैलरी आएगी तब मैं उनको पे कर दूंगा। ये भी होता है, अपना COD है। अगर कस्टमर की जेब में पैसा है तो वो अपने पास ऑर्डर देगा। अगर पैसा नहीं है तो वो किराना वाले के पास जाएगा, कभी मुझे ये चीज़ दे दे और मेरे अकाउंट में लिख देना,
सैलरी आएगी, जैसे उसका कंटिन्यूस मंथ टू मंथ चलता रहता है, वो वहाँ जाएगा। अपने मंथ की बात कर ले तो कम से कम अपने पास 500 ऑर्डर आएंगे ही आएंगे, छोटे आए बड़े आए वो दिक्कत नहीं है, कितनी अमाउंट क्या है वो भी दिक्कत नहीं है। पहले अपने को हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने ऑर्डर बढ़ेंगे तो उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे हमारी सर्विस इतनी फास्ट मूवमेंट में हम उसको डिलीवरी दे रहे हैं, वो पहला मायने रखता है। अगर 2 घंटे में हमको उनको डिलीवरी दे देंगे तो कस्टमर को एज ए प्लस पॉइंट आ जाएगा कि भाई हाँ, मेरे को जितनी ज़रूरत थी उतने में इन लोगों ने गुड्स पहुंचा दिया, तो वो प्रेफर करेगा दूसरे टाइम पे कि भाई हाँ डिलीवरी करेगा। ठीक ठीक बात जिग्नेश भाई। एंड क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ और भी हैं और हमारा टाइम खत्म होने को है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी बिकॉज बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरा इन्वेंट्री कैटेगरी भी समझना चाहते हैं, असॉर्टमेंट क्या है और लोकेशंस कौन सी हमारी अवेलेबल हैं, कुछ लोकेशंस जहाँ पे अभी आपका स्टोर चल रहा है उनकी भी डिटेल्स जानना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस हमारा एक ही स्टॉल चल रहा है देगाम में। एंड अगर कोई विजिट भी करना चाहता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती थी एक दिन हम रख सकते हैं जहाँ पे सब हम क्वेश्चंस डिटेल में अपने इन्वेस्टर के साथ हम 1-to-1 ले सकेंगे। और अर्चना कोई एक दिन जो आपने ठीक है फिक्स किया हुआ है अगर हम वो अनाउंस करना चाहते हैं? मैम 13th जुलाई, तो 13 जुलाई है जो अगले हफ्ते है हमारा। 13 जुलाई को अगर आप कोई विजिट भी करना चाहते हैं आप प्लीज हमारी टीम फ्रेंचाइज इंडिया को लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे हॉटलाइन नंबर पे और हम जिग्नेश भाई के साथ आपकी कॉल मीटिंग विजिट स्पेशली जो भी अहमदाबाद के हैं वो सारे के सारे मिलना भी चाहें तो मिल भी सकते हैं। और जो भी आपकी इन्वेंट्री को लेके प्रोडक्ट को लेके कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो हम कोशिश करेंगे वो सारी की सारी क्वेरीज हम डिटेल में 1-to-1 सबके साथ ले सकें। एंड जिग्नेश भाई क्योंकि हम क्लोज करें अपना वेबिनार, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी एक मैसेज आप सब ऑडियंस को जो देना चाहते हैं जो सुन रहे हैं तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं इतना देना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है, हम जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे। आप एक बार देखिए, सोचिए कि भी ये कॉन्सेप्ट किस तरह से चलेगा, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस में अभी हिंदुस्तान ने इतना ग्रो किया है कि अपनी समझ से बाहर चल रहा है सब, क्योंकि कस्टमर तो दिमाग में एक ये आ गया है कि हम होम टू डिलीवरी क्यों नहीं ले रहे, हम बाहर क्यों जा रहे परचेस करने के लिए। डोर टू डोर डिलीवरी इतना ग्रो कर रहा है कि आप सोचो ही मत, क्योंकि मैं मेरे घर पे जो फूड एंड बेवरेज मंगा रहा हूँ वो भी होम टू होम ही मंगा रहा हूँ, घर पे आके डिलीवरी कर जाए। एक ही लाइन में सब सारी घर की चीजें घर पे पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात जिग्नेश भाई। एंड हाँ, फ्रेंचाइजी को ये कहना चाहूंगा कि सोचिए आप जरा, ये ग्रो करने वाला बिजनेस है। 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपको दिखेगा कि नहीं ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये बिजनेस जो है वॉल्यूम का भी बिजनेस है, इसमें मार्जिन्स भले ही कम हो बट ये वॉल्यूम पे प्ले करता है, तो नेबरहुड ठीक चाहिए। 3 से 6 महीने का टाइम वॉल्यूम बहुत हाँ, और 3 से 6 महीने का टाइम है जब आप अपना पूरा बिजनेस आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, आपकी मार्केट क्रिएट हो जाएगी, आपका रेगुलर सब्सक्राइबर ग्रुप है जो इसमें बन जाएगा। सो विल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वेरीज हैं, 13 जुलाई का दिन है, अगर आप मिलना चाहते हैं या फोन पे बात करना चाहते हैं या एक वर्चुअल मीटिंग करना चाहते हैं, आवर टीम्स विल रीच आउट टू यू और हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बिजनेस मॉडल को लेके हम सब लोगों से हम शेयर करेंगे। Thank you again for being with us, friends. Archana, can I request you to kindly take over? Sure. So thank you so much, Jignesh Bhai, for joining in today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Sonia ma'am. Dear friends, thank you so much for sparing time attending this particular webinar on Monday. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 97176 83838. You wish to have direct connect with Jignesh Bhai, please book your slot for 13th of July, which is our Discovery Day.
Also connect with us at different social handles. We are available at Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. Do share your suggestion and feedback with us because that will help us in improving our processes. You wish to join Gaurav sir and Sonia ma'am, you can join them at their respective LinkedIn IDs, information on your screen. And today we wish you to join, we wish you to invite us for our Bharat Franchise Show, which will start at 7 p.m. We have invited 7 top business opportunities as well as the brands representatives so that they can come and digitally interact with you. These brands will represent different vertical. Please do registration today at our business hotline number, which is 97176-83838. We have also shared the link of registration on our Facebook. So please do registration so that we can see you at our Bharat Franchise Show 7 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Great Thank you. day. Prince. Thank Thank you. you, Jignesh bhai. Thank you.